Good evening, Pistons. I hope you're having a very good week and also an upcoming good weekend. So, on that note, I would also like to wish you a very happy new year of 2025, and I wish this year brings you abundance of each and everything you ever wanted. So, on this auspicious note, let's just quickly get down to this particular video where we are today gonna see a answer to the topmost query for the last 2 months in my DMs, emails, and every sort of that particular, you can say, notification thing is is the market bullish? Is the market bearish? People are confused about whether the bulls are taking on or whether the bears are taking on. Who is actually in control and who is gonna take whom? So, to end this particular discussion here, once and for all, and this is with reference to the data of last 4 years, that is after COVID. So entire 4 years, this pattern is repeating. Yes, you heard it right. For 4 years, this pattern is repeating, and this is the easiest way around. You do not need any kind of data, OI, this, that to gauge in the strength, or even let's say you do not even need to see the selling figures of FIs and DIs. How about that if I tell you? You just have to look at one level and one condition. That's it. If that particular thing breaks, or you can say if the history breaks the particular pattern, you are completely out of your longs basically, and you start to build up your short for the upcoming time. You can say that. So, to just quickly start with our particular video, this is a reference chart to start with. So, this is a reference chart which was posted on our discussion room of Webinar Cycle 3.0, named as Prayog, for our group members to see and infer for the particular week, that is this particular week. And we had drawn a particular, you can say, this is the all our custom tools and you can say uh, ecosystem setup for our webinar members. So not going deep into that, just observe this particular range of 24,080 and 24,180. Okay, 160. So this was an initial gap zone as well, and also it is coinciding or coming into confluence with our pivot levels also, which also gives a initial target area for this particular study. Now, what exactly happened, how the day progressed, we will look onto that first, and then I will ultimately tell you in a short video of 10 to 12 minutes where you will see this particular thing in front of your eyes. And this can also, you can say, go around with any index you want. We will get onto that in a couple of minutes, so stay in this particular video. Now, let's take the progression on 30th of December, that after this were we able to hit this, and if not, उसके बाद क्या हुआ and उसके बाद के progressions क्या थे. So suddenly when the indices started to rally near to DH4, that is near to 11:45 12 p.m., we saw something and we flashed a message in our particular discussion room, which was around this particular thing. So I have already um, got that particular thing ready, so that you and we do not waste any of a single minute in this particular video. So this is where I flashed a particular message. See, this is on 30 of December, right? Current scenario might be looking good for BNF mid cap, but Nifty 50 is lacking the strong support to come into further momentum. Okay. And next is, can we expect RIL to join the party, as this is the only option to make Nifty 50 rally past WH3, which is sitting on the head of WH4 participants. That's it. You check the timestamp. This is, I'm just showing you just to move on to the core discussion once and for all. So this is how the, you can say, thing progressed. So this is Nifty. I will just clear it off everything for you quickly. Okay, so this is a chart for Nifty, and we have used part one. This is our reference. And now on the left hand side, that is this side, you are seeing on your screen
daily pivots for different days. So let's quickly go on to 30 or 38th of December and check the timestamp first. Do we see anything happening near to 12 p.m. as of such? So here you see 11:45, and here we start with which ends at, let's say, 12:15. Now, if you go and see what happens after a flash, so this is your L3 level. Okay, this is your L4 level. This is your L5, and this is your L6. This is your H4 here. You see a doji type of candle, okay, and then you see the fall in the market as well. So let's quickly check the opening first. Opening में देखिए, opening is happening above L3, but it is closing below L4. What happens next? Next, with the presence of momentum in mid cap first, and then in certain kind of banking stocks, with the help of that, you see Bank Nifty rallying, mid cap rallying, and then eventually Nifty getting carried away by that particular thing as well. But near to its days high, and also near to a area where you can also tell it out to be DH4. इधर हमने ये देखा कि DH4 पे आपके पास एक सस्टेन मोमेंटम नहीं है जो निफ्टी को आगे ले जा सके, बिकॉज बाय दैट टाइम इफ यू गो एंड चेक विद द चार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी के चार्ट जाके देखेंगे, तो वो सारे इंडाइसेस नियर टू H6 थे. That is a extended target for a particular day. There are very rare instances where a particular index is going and hitting extended targets during a particular session or during a particular intraday session. ऐसा हर टाइम नहीं होता है. Very rare occasions are there. So you have to understand these are very high momentum days. मतलब मार्केट में या तो मोमेंटम ज्यादा है या तो वोलेटिलिटी ज्यादा है. Any of the two things are visible in the market. ठीक है, तो इधर ही हमने वो चीज देखी. So at 12 p.m., near to 12 p.m., Nifty is at DH4, while every other three indices are around H6. वो तीनों की तीनों इधर है. All the three indices, only one index, that is a broader index, stands here. Now, why I'm calling it a broader index, वो आपको समझना बहुत जरूरी है. कभी भी आपको मार्केट का डायरेक्शन पता करना है, या कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मार्केट डूइंग, you will certainly go and tell कि market is doing this and that, looking onto Nifty, because Nifty is the mother, you can say mother guider for every other baby indices or sister concern. That is Bank Nifty, Mid Cap Nifty, Nifty 500, Small Cap, and all those particular, you can say, indices as well. But when we go and check for a view on the market, we always go on Nifty spot to check it. Okay, so here is the thing. I hope now you understand what happened exactly here. You see a break of bearish GPZ. See, this is not a normal CPR. This is a GPZ. Whenever GPZ is there, we have talked about a foundational move of how a GPZ moves, how a particular normal CPR moves. Okay, and that is available in our webinar cycle 3.0. So, not wasting time further, we will directly jump on to the further discussion here. You see, the GPZ is not taken out, is not being able to get breached. That is a bearish GPZ. Why bearish? Because H3 का जो level है वो आपके CPR के अंदर है, तो उसको हम bearish बोलते हैं, bearish GPZ. And vice versa, जब भी L3 आपका CPR के अंदर होगा तो आप उसको bullish GPZ बोलोगे. Now, you see, index goes down. For the safe players, your entry should be here. And for the safest player आप बोलेंगे तो days low पे भी आप entry ले सकते हो. राइट, एंड उसके बाद आप देखेंगे इधर आके वो हिट हुआ. नाउ द आयरनी एंड द मोस्ट फनी पार्ट इज ऑल द थ्री मेजर इंडाइसेस. ठीक है, आफ्टर, मैं ब्रॉडर नहीं बोल रहा, मैं मेजर बोल रहा हूँ. मेजर में आप समझ सकते हैं बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी. ठीक है, तीनों के तीनों ने H6 को हिट किया है अप्रोक्सीमेटली. Only Nifty is one such which is not able to cross even the CPR for that particular day, that is 30th of December. But Nifty completes its extended targets on the downside, L6. How funny is that, right? But more funny part starts when we are about to end this particular day. Now, let's say you tell me, okay, Mukul bhai, you told in your group that this is your initial target range, but market has gone down on the same day.
That is the second question. We saw the strength, we capitalized on that particular opportunity, we saw the volatility coming, okay, and we had a VC on that particular day as well, a live VC that is happening daily, where we discuss about the current market scenario. So there also we saw 10 such confluent factors which are contributing and also are in confluence to support the study that why it went down and why the volatility will keep on increasing. Okay. Now, if you see this similar thing goes up on the second day, फर्स्ट जैन को आप देख सकते हैं उसने बुलिश जीपीजेड बनाया और उसको सस्टेन किया है एंड देन इवेंचुअली टुडे इफ यू सी द मूव it just took off and completed H6. That is what I said. There are only two instances where you see this kind of moves happening. Extended targets आपको दो ही इंस्टेंस में मिलेंगे, जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो या फिर आपका मोमेंटम ज्यादा हो. कीप दिस थिंग नोटेड, राइट इट डाउन एंड कीप दिस थिंग नोटेड. जब भी आपको वोलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी या मोमेंटम ज्यादा मिलेगा, आपको मार्केट में चांसेस रहेंगे फॉर इंडाइसेस टू गेट ओवरस्ट्रेच्ड. एंड इस टाइम पे आपको कोई ना कोई लीडर मार्केट में मिलेगा ही मिलेगा विच इज ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर वोलेटिलिटी और यू कैन से द मोमेंटम. ये काफी एक डीप स्टडी है, इसके बारे में हम कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक हियर, दिस इज व्हाट वाज द रेफरेंस ऑल अबाउट. ठीक है, नाउ आई विल शो यू why we were evident that this particular target is still open. Because you see, we did not discard our study that this target has gone off or you can call off. No, it is still open. Why? This is because I am seeing something from the past 4 years which I am sharing with you all now, so that when you check this particular thing out again on your chart, you will never require this particular question or you can say query to be asked to someone else apart from you. आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की आपके खुद के अलावा कि मार्केट बुल के हाथ में है कि बेयर्स के हाथ में, बुल्स के हाथ में या बेयर्स के हाथ में, राइट. उस चीज को समझने के लिए मैं आपको पहले ब्रॉडर इंडेक्स पे ये चीज दिखाता हूँ. लेट्स गो एंड चेक ऑन निफ्टी, राइट. सो दिस इज बेसिकली योर निफ्टी का चार्ट. दिस इज योर निफ्टी चार्ट. लेट्स अंडरस्टैंड कि पहले तो ऐसा कोई पैटर्न है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं या फिर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं. ठीक है, कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑफ market not going in the hands of bears. And this is not one instance. I have a documented kind of VCs and you can say charts right from this particular all-time high to this particular fall to this particular reversal to this fall to this particular reversal. Each and every day almost is documented. Each and every reference chart is documented, and that is because of one single thing. So I'm not going into depth. I'm just showing you one single, you can say, a pattern which is getting repeated and one condition which needs to satisfy. That's it. Beyond that, you do not need to even see data, beta, volume, volume, even your FIs, DIs के buying, selling figures. How cool is that? Let's quickly jump onto that. What I will do is I will quickly switch on to, मैं इधर switch करता हूँ monthly CPR पे. एंड मैंने क्या किया, मैंने पार्ट 1 लिया, उस पे मंथली CPRs प्लॉट किए एंड आई हैव जस्ट प्लॉटेड द हिस्टोरिक CPRs आल्सो. नाउ वी विल क्विकली गो ऑन टू 2020. कोविड के टाइम से जहां से मार्केट उठना शुरू किया है, हम एक पैटर्न देखते हैं और उसके बाद हम कंडीशन देखेंगे क्या सेटिस्फाई हो रहा है. उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे डिफरेंट इंडाइसेस से, क्या ये यही स्ट्रक्चर सारे इंडाइसेस में दिखता है, और अगर वो चीज ट्रू है तो फिर आपको ये चीज आगे बहुत काम आने वाली है. आपके पोर्टफोलियोज, आपको कब SIPs बढ़ानी है, कब SIP घटानी है, कब कौन से सेक्टर में रोल ओवर करना है, कौन से सेक्टर से बाहर निकलना है, सब चीजें आज इसी एक टूल से मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं. एंड आई गेस दिस वीडियो शुड be listened with ultimate attention from here on for the next 10 minutes at least. ठीक है, तो let's start. तो मैंने पहले से कुछ चीजें रेडी करके रखी है so that we do not waste time. मैंने नंबरिंग करके रखे हुए हैं
एंड दीज आर यू कैन सी 17 तक गया हुआ है। मतलब 17 ऐसे इंस्टेंस है जहां पे पैटर्न ने वापस एंड वापस शेप अप किया है, और उसके बाद अगर वो पैटर्न ब्रीच हो रहा है तो उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है और कैसे सेटिस्फाई होती है हम वो देखेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद ब्रॉडर मार्केट्स फर्स्ट। नाउ कमिंग बैक टू कोविड टाइम, आपने देखा होगा कोविड टाइम के बाद वी सॉ अ स्टीप रैली फॉर द पास्ट 4 years। एंड अगर हम एक क्लोजिंग फैक्टर का बात करें, सो फॉर द पास्ट 9 years, दैट इज राइट फ्रॉम 2013-14, हमने एवरी ईयर एक पॉजिटिव नोट की क्लोजिंग देखी। मींस साल में कुछ भी हुआ हो, साल के क्लोज मतलब ईयर ऑन ईयर जो हम क्लोज कंपेयर करते हैं वो पॉजिटिव है फॉर द पास्ट 9 years। बट हम खाली अभी 4 साल का डेटा दें, ठीक है, राइट फ्रॉम कोविड, बिकॉज उधर से मार्केट के डायनामिक्स पूरे चेंज हो चुके हैं। तो आप देखिए, ये मैंने प्लॉट किया है सीपीआर, मंथली सीपीआर, मंथली H4, ये आपका मंथली H4 है, ये मंथली L4 है, और ये आपका मंथली सीपीआर है। करेक्ट, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो अब जब आपको ये चीज क्लियर है, मैंने कंडीशन 1 मार्क किया है, क्यों? आप देखिए, जब भी आपको देखना है मार्केट, देखिए बुल मार्केट में कोई क्वेश्चन नहीं करता, बिकॉज बुल मार्केट में एवरीवन इज ऑप्टिमिस्टिक, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। बट क्वेश्चंस अराइज कहां होते हैं जब मार्केट गिरने लगता है, एंड आज मैं उसी पॉइंट को टच करने जा रहा हूं। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द बुल मार्केट, बिकॉज एनी विच वेज आप वो चीज गेज इन तो कर ही लेते हो। हमें गेज इन जो नहीं होता है, हम उस पर बात कर रहे हैं, जो एक सीक्रेट टूल भी हो सकता है जस्ट टू आइडेंटिफाई the momentum out there in the market, or if bears are actually there in the market। ठीक है, तो ये देखिए, एक पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न क्या है? जब भी मार्केट मंथली L4 के पास आ रहा है, वो दो चीजें कर पा रहा है। पहला, या तो वो उसको ब्रेक कर रहा है, सॉरी, या तो उसको सस्टेन कर रहा है, ओके, सस्टेन, या फिर उसको ब्रेक कर रहा है, और इतना सा ही वो आपका सॉल्यूशन है टू ऑल योर क्वेरीज। या तो सस्टेन करता है या तो ब्रेक करता है, ये दो ही चीजें पॉसिबल है, राइट, एट एनी गिवन लेवल। And we will talk about these two conditions only, and that will exactly give you if the market is in bull condition or bear condition, or a bull cycle or upcoming bear cycle. Simple, straight, and easiest way to see or check the market. Let's go. So see, here आपने देख रहे हो, इधर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, सस्टेन, ठीक है, L4 को नहीं तोड़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए सेकेंड टाइम इधर हो रहा है, नहीं तोड़ा जा रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। Let's move forward from here on. Just a minute. Yeah. See, थर्ड मैंने क्यों मार्क किया? बिकॉज कहीं ना कहीं इधर आपको एक टच या वेरी वेरी क्लोज एनकाउंटर विद योर मंथली L4, बट टूटा नहीं है, ठीक है। फोर्थ, अगेन वेरी वेरी क्लोज एनकाउंटर बट डिड नॉट ब्रेक। नाउ कम्स द रियल पिक्चर। सी, दिस इज ऑलमोस्ट अ टच, इधर एक्चुअली 5 होना चाहिए था, बट ठीक है, आपका 5 हम इधर ले जाते हैं, ओके। दिस इज योर फिफ्थ टाइम। अब फिफ्थ टाइम में देखिए क्या हो रहा है, टच हो रहा है बट सस्टेन हो गया। अब क्लोजिंग देखिए मंथ की, फिफ्थ एनकाउंटर। सिक्स्थ आप देखिए, टच किया, नीचे आया, बट अगेन ऑन द वेरी सेम डे आपका फॉलोअप सेलिंग नहीं आ रहा है, मार्केट सस्टेन कर जा रहा है। सेवेंथ टाइम देखिए, मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन हो जाता है। comes the picture here, eighth time, 8th and 9th, okay। now you see here one thing। देखिए, मैंने दो कंडीशंस बताई थी, एक या तो सस्टेन करेगा या तो ब्रेक करेगा। सस्टेन कर रहा है तो उसका सब कंडीशन हमें लेना ही नहीं है, बट अगर वो ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली वो कहां जाके रुकेगा? उसका सिंपल सा आंसर है वर्जिन CPR, दैट्स इट। इधर से मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, मैं मेरे वर्जिन CPR देख लेता हूं, क्योंकि देखिए मैं एक पहले लाइन मार्क कर दूंगा हॉरिजॉन्टल, ताकि वो मेरा रेफरेंस बन जाए। इधर के बाद मार्केट ने, आप देख सकते हैं, मंथली L4 तोड़ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लाइक 2 years। मार्केट हैज फाइनली ब्रोकन मंथली L4 फर्स्ट टाइम। आप देखिए, इधर भी सस्टेन होने की कोशिश हुआ फॉर द फर्स्ट 3 days, बट फोर्थ डे पे वो नीचे आ गया। बट वो क्यों आया है और वापस इधर से ही क्यों रिवर्स हुआ? लेट्स गो एंड चेक।
What I will do is I will just plot something for you. I said Virgin CPR, correct? Have a look. Virgin CPR means when price has not touched that particular CPR and moved on upside and vice versa of the downside. That is a virgin CPR. We can say untouched CPR. That is why we give it a name as virgin CPR. Okay, अब देखिए, right? So this condition number one and condition number two with respect to monthly CPR is done here. अब हमें खाली एक फॉलो अप देखना है. इसके खाली फॉलो अप जा जाके देखना है ये थियोरी आपकी पिछले 4 साल से सस्टेन कर रही है कि नहीं. करेक्ट. लेट्स गो. आइए इधर देखिए. सेम थिंग हैपनिंग आउट हियर. राइट. इधर हो क्या रहा है सबसे पहला तो आप अगर देखें. After this, you get a gap down opening on 26th of September 2022. फॉलो अप सेलिंग आ रही है. उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है. उसके बाद इधर से वापस एक स्टीप रैली ऊपर की तरफ दे रहा है. कहां तोड़ा और कहां तक गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड कंडीशन एक्टिवेट हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है. देखते हैं. वर्जिन सीपीआर, वर्जिन सीपीआर टच एंड रिवर्स्ड. सेम थिंग. इधर भी सेम चीज हुई है, इधर भी सेम चीज हुई. आगे चलते हैं. तो सी 9th टाइम सस्टेन हो गया, 10th टाइम सस्टेन हो गया. कमिंग 23 में तो एक बार भी नीचे नहीं गया. सो यू कैन चेक आफ्टर मार्च और मार्च भी अगर आप कंपेयर करें ना तो आपको दिख रहा होगा बिकॉज हमारे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल. तो मार्च और मार्च भी आप देखें तो 23 में फर्स्ट हाफ में तो मार्केट बेरिश ही नहीं था. ऑलमोस्ट एक बुल रैली में ही चल रहा था फॉर यू कैन से 5 और 6 मंथ्स. फिर आप देखिए अगस्त में जाके कितनी बार ये L4 टेस्ट हुआ बट सस्टेन हो गया. देन आफ्टर इट गोज अप, कम्स डाउन, गोज अप. फाइनली इधर आता है, ब्रेक करता है. ठीक है, ये देखिए, ये और फिर ब्रेक, बट इंस्टेंटली इट गोज अप. व्हाई? यू कैन जस्ट check it out here. Check this thing out. Instant. Right? What happens next? Let's go and see. After that, you see in the year of 2024, that is जो past year गया है, लगातार 3 महीने इन्होंने L4 को टच सस्टेन किया. आप समझिए how much of increased sort of volatility would have been in this particular scenario. आप देख सकते हैं. Right from this particular April, May, June, already you know we had elections ongoing and upcoming as well. ये सारी volatility उसी की है. जून तो आपको पता ही है. You can exactly recall the May day, but you see how beautifully is this particular pattern sustaining. ब्रेक हो ही नहीं रहा. सस्टेन. अगर ये ब्रेक हो जाता ना, if this particular thing would have been taken out, can you see where was the target? And this is still open, right? But हम आएंगे उस पर. ये फ्यूचर में कभी आए या कभी मार्केट नीचे आए तो हम इस लेवल को देखेंगे. बट राइट नाउ दिस इज नॉट अ कंसर्न. यू सी, इन केस दिस कुड हैव गॉट ब्रोकन आउट एंड अगर आपको एक मोमेंटम नीचे की तरफ मिलता तो आप देख सकते हैं आपका टारगेट किधर था. ठीक है. अब करंट सिनेरियो पे आते हैं. जो आपने देखा होगा हमारे इधर से मार्केट ने रिवर्स मारा ऑलमोस्ट. ओके चलो इधर रह गया. इधर देखिए, ऑलमोस्ट इसने ब्रेक किया है बट सस्टेन हो गया. आप देखिए 1 कैंडल एंड देन उसके नीचे फॉलो अप सेलिंग आई नहीं थी, ऊपर चला गया. और इधर एक वर्जन सीपीआर था. लास्ट 2 मंथ्स ऑलमोस्ट किस एंड गो हुआ है. किस एंड गो. इधर भी आप आके देखेंगे तो किस एंड गो. सी, दिस इज एग्जैक्टली 31st ऑफ दिसंबर. 30 और 31st को आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक लो बनाने के बाद मार्केट इंस्टेंटली 3 दिन से रैली कर रहा है. दिस इज हाउ सिंपल इज योर एनालिसिस. सिंपल एंड स्ट्रेट. इसके बाद से आपको ना कभी किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कभी घबराने की जरूरत पड़ेगी कि मुझे अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स फाइंड अप करने हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, दिस दैट. कुछ भी नहीं. वन सिंगल थिंग
on your chart and this is the simplest thing. मैंने आपको बहुत चीजें मैं आपको बता सकता था, ये डेटा वो डेटा दैट दिस ऑल, बट उसका जरूरत ही नहीं है. जितना सिंपल आपको मैं समझा सकता हूँ मैंने उतना सिंपल ट्राई किया इस वीडियो में समझाने का. अगर आपको ये चीज समझ में आई है एंड आपको ये सही लग रही है, then do share it with your friends, family and everyone so that they are also aware of this particular thing. And this is, see, this is happening for the past 4 years, 4 complete years. आप देख सकते हैं, राइट? अब अगर आपको इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो ठीक है, लेट्स गो एंड चेक बैंक निफ्टी. तो उसके भी चार्ट्स मैंने रेडी रखे हैं आपके लिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. हैव अ लुक. सॉरी, दिस इज फ्यूचर्स बैंक निफ्टी. ये देखिए, ऑल द कंडीशंस आर मार्क्ड हियर. तो आपको अब कंडीशंस तो बाय हार्ट हो चुकी होंगी आई होप. तो इधर आके देख लेते. सी, आफ्टर दिस लेग फर्स्ट टाइम इट गोज ब्रेक्स, बट ये आया नहीं. हालांकि इस टाइम पे तो आप समझ सकते हैं द मोमेंटम इज वेरी वेरी हाई. इस टाइम पे द मोमेंटम इज वेरी हाई, सो दिस थिंग इज गेटिंग टेकन आउट एंड देन सस्टेन एंड इंस्टेंटली अप. उसके बाद आके देखते हैं क्या हो रहा है. सस्टेन एंड अप, राइट? ये देखो, सस्टेन एंड अप, सस्टेन्ड एंड अप. आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सस्टेन्ड एंड अप, आर यू सीइंग? उसके बाद आप देखिए फाइनली इधर ब्रेक हो रहा है. इधर ब्रेक हो रहा है तो लेट्स गो एंड चेक कहीं हमें एक वर्जिन सीपीआर दिख रहा है कि नहीं. ये इधर तक का ही कैंडल आया है. अब देखिए, दिस वाज द लास्ट वर्जिन सीपीआर which you were seeing which got already filled. ये ऑलरेडी इधर फिल्ड हो चुका है, इसकी वजह से सस्टेन भी और ऊपर भी चला गया. ये जो ब्रेक आया है, इधर जो ब्रेक आया है, उसके बाद आप देखिए आपको कहीं पे भी एक वर्जिन सीपीआर नहीं दिख रहा है. तो ओनली वर्जिन सीपीआर व्हिच वाज लेफ्ट आउट वाज दिस पर्टिकुलर जोन. तो मैं इसी को रेफरेंस लेके मार्क करता हूं. ओके, सी, things are not going down below this particular point, right? So this is how simple the things are. अगर मार्केट को नीचे आना भी होता ना तो वो इधर कहीं पे टेस्ट ले लेता, या इस टाइम पे इधर टेस्ट ले लेता, या इस टाइम पे इधर टेस्ट ले लेता. कोशिश हुई है, देखिए ये अभी भी अनफिल्ड है. दैट इज व्हाई यू सी मल्टीपल ट्राइज हैव बीन मेड टू गो पास्ट दिस पर्टिकुलर लो. आप देखिए, फर्स्ट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, बट हर बार आप फॉलो अप सेलिंग देख ही नहीं रहे. सिर्फ इधर एक टाइम था जहां पे क्लोज भी आप देखिए सस्टेन हुआ. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इधर आप almost you see the condition is not getting fulfilled of break of you can say L4. Why? Have a look. This first candle comes, इसके बाद follow up selling ही नहीं है for that particular month. That is 20 Feb 2022. उसके बाद next month देखिए, next month ये candle break करता है, उसके बाद कोई follow up selling ही नहीं है. इधर देखिए, ये कैंडल ब्रेक करता है, फॉलो अप सेलिंग ही नहीं है. ये कैंडल ब्रेक करता है, फॉलो अप सेलिंग ही नहीं है. क्यों? व्हाई? बिकॉज देर इज एक्चुअली नो वर्जिन सीपीआर. इसको हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ये आपका लास्ट लो बना हुआ है, राइट? ऑल्दो इफ यू जस्ट सी दिस इज ऑल्सो अ टच ऑफ प्राइस. A full body is touching this particular CPR. What market was actually trying to do was come down to this particular area as well. ये एक्चुअल में वो सीपीआर है जहां पे मार्केट बार बार आने की कोशिश कर रहा है, या 2022 राइट फ्रॉम 21 to 22 कर रहा था. बट यू सी दिस एरिया इज गेटिंग सस्टेन अगेन एंड अगेन. एंड इफ यू रिकॉल आई टोल्ड यू टू कंडीशन, सस्टेन और ब्रेक. ब्रेक के टाइम ही जब आपको एक फॉलो अप सेलिंग मिलेगी तभी जाके आपको एक पर्टिकुलर मूव टुवर्ड्स द वर्जिन सीपीआर मिलेगा. रिमेंबर, आप देखिए ये कंडीशन जो मैंने आपको दिखाई वो कहीं ना कहीं सेकेंड कंडीशन में जा ही नहीं रही. सस्टेन 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 सस्टेन, राइट? लेट्स मूव अहेड. Moving ahead, you see here also we sustained, moved up. Here also we sustained, moved up. Here also we came down again,
इफ यू सी वी केम डाउन दिस कैंडल, उसके बाद देखिए अगर मैं इसका लो भी मार्क करूँ समवेयर इट्स सस्टेन्ड कैटेगरी ओनली, कहीं ब्रेक इधर दिख नहीं रहा फॉर योर आईज टू सी. हैव अ लुक. दिस इज ऑलमोस्ट नियर टू L4. दिस कैंडल इज ब्रेकिंग L4, राइट. उसके बाद आप देखिए देयर इज नो सच फॉलो अप सेलिंग बीइंग सीन. अगर होता भी तो दिस वाज द एग्जैक्ट CPR which could have been touched. Okay, now you come and check here. This candle breaks off, selling goes for trying out this particular, you can see contact. Target इधर ही था, but you see this is also standing. ये CPR से retrace होके वापस चला गया. Although this is not a virgin CPR, okay? This is the virgin CPR. Next, इधर देखिए, इधर you can see a proper break. Candle comes, retest and then comes down again. इधर आप देखिए, just short, point short of CPR, but the contact point was here. Contact point इसका इधर ही था. This is the condition where you can call this condition as breaking. Second condition fulfill हो रहा. उसके बाद आप देखिए touch, 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 touch. Now we are moving. Very very easy. अगर बैंक निफ्टी ब्रेक भी करता ना मंथली L4, तो इसके पास सीधा ये लेवल है गिरने के लिए, सीधा. देयर इज नो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मंथ. अंदर वीक आ जाए, डेली आ जाए, दैट इज नॉट आवर कंसेंट नाउ. वी आर जस्ट चेकिंग मंथली. और मंथली पे अगर ML4 ब्रेक होके अगर वो सस्टेन कर रहा है सेलिंग को, तो हम ये देख सकते हैं कि इधर ही आके रुकेगा. दैट इज हाउ पावरफुल दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज. इफ यू आर नॉट स्टिल सेटिस्फाइड, लेट्स मूव ऑन टू मिड कैप. अब मिड कैप का इंसेप्शन ही आपको पता है कब से हुआ है. मिड कैप का इंसेप्शन ही हुआ 22 से. सो लेट्स क्विकली गो एंड चेक फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स एज वेल. सी टच सस्टेन, इधर आप देखिए ब्रेक हो रहा है, बट देयर इज एक्चुअली नो CPR बिकॉज इंडेक्स ही अभी शुरू हुआ है, तो हम इसका लो कंसिडर कर सकते हैं, राइट. इसका लो देखिए, इफ आई जस्ट प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, और कोई रेफरेंस ही नहीं है ना, और कोई रेफरेंस ही नहीं. इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेश IPO. ओके, यू हैव नो रेफरेंस एज सच. सो यू सी ब्रेक, इधर लो पे आता है, गॉन. इधर देखिए इस पहला कैंडल है जो इस लो को ब्रेक कर रहा है, बट इधर भी आप देखिए सस्टेन हो रहा है, राइट. आफ्टर दिस कैंडल नो फॉलो अप सेल. मूविंग फॉरवर्ड, इधर से तो पूरा इंडेक्स इलिक्विड था. हियर कम्स अ पर्टिकुलर पिक्चर. आप देखिए इधर एक ब्रेक होता है, फॉलो अप सेलिंग भी आ रहा है, बट इंस्टेंटली इट वेंट अप. हैव अ लुक, वर्जिन CPR, राइट. उसके बाद आप देखिए इधर इधर एक ब्रेक आता है, इधर से मार्केट रिवर्स हो जाता है. व्हाई? आपको ऑल द वर्जिन CPR इधर दिख रहा होगा, बट एक्चुअली दिस इज ऑल्सो वर्जिन CPR. ओके, आप पूछ सकते हैं क्यों, प्राइस ऑलरेडी टच कर चुका है. सी, आपने सुना होगा स्ट्रेंथ के टाइम पे भी ना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, व्हाट इज एक्चुअली वर्जिन CPR? इट इज अ फॉर्म ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पिवट. बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक सब थियरी आपने सुनी होगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वीक सपोर्ट. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में जब हम पिवट के थ्रू बात करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग वर्जिन CPR तब माना जाएगा व्हेन इट इज कंप्लीटली अनटच्ड. ठीक है, तो जैसे कि ये, अब ये वर्जिन CPR क्यों है? क्योंकि दिस इज अ वीक वर्जिन CPR, स्टिल वेरी वेरी यू कैन से क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज अ वर्जिन CPR. व्हाई? क्योंकि इस वर्जिन CPR को खाली विक्स ने टच किया है, नो पर्टिकुलर बॉडी हैज क्लोज्ड विद इन. रिमेंबर बैंक निफ्टी का एग्जांपल, जहां पे हमने देखा था इट वाज तीन तीन महीने से वो नीचे पुल ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, बट वर्जिन CPR था ही नहीं उधर, राइट. अगर आपने देखा होगा एक सिंगल कैंडल उधर से ही रैली कर गया था, बिकॉज द बॉडी वॉज देयर, सो इट वॉज नॉट क्वालिफाइंग एज वर्जिन CPR एज सच. बट इधर आप देखेंगे सारी की सारी विक्स है. So although this is not a complete kind of virgin CPR, or you can say a strong virgin CPR, but this is actually a virgin CPR but a weak one. मतलब इधर से ये प्राइस although it has just rallied up, but ये strong एरिया नहीं था, हो सकता था इधर से ब्रेक करके नीचे की तरफ भी ट्रैवल कर जाता if the broader index was going down.
आई होप यू अंडरस्टैंड, करेक्ट? मूविंग फॉरवर्ड, इधर देखिए, टच एंड सस्टेन, टच एंड सस्टेन, टच एंड सस्टेन, एंड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही. Okay, now it is not even coming back to ML4. Now last index which remains is I guess Fin Nifty. ये भी बच गया, इसको भी चेक कर लेते हैं. So far so good, I hope so. आ जाते हैं फिन निफ्टी फ्यूचर्स पे. तो ये इंसेप्शन ही इसका इधर से, ये देखिए, टच एंड गो, टच एंड गो, राइट, टच एंड ब्रेक. इधर देखिए ये ब्रेक हो रहा है, तो लेट्स सी इफ देयर इज अ वर्जन. ये देखिए, राइट, एंड अल्टीमेटली कहीं आगे इंसेप्शन से ही नहीं है, इंसेप्शन से सबसे पहला वर्जन सीपीआर ये ही है. आप देखिए, बाकी सब में बॉडीज हैं, इसमें खाली विक्स है. हाँ बोले, ब्रेक एंड क्लोज नियर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. उसके बाद भी आप देखिए, इस एरिया को ये ब्रेक करता है, बट इसके नीचे एरिया को भी ब्रेक किया है, वर्जिन सीपीआर के एरिया को. एट द सेम टाइम इट हैज टेकन आउट मंथली L4, मंथ ऑफ मार्च 2022. इसने ML4 को क्रॉस किया है, एंड उसके बाद आप देखिए कहीं पे भी आपको फॉलो अप सेलिंग नहीं मिल रही है. उसके बाद स्ट्रेट अवे रैली है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे रीटेस्ट के लिए आता है, उसके बाद ऊपर जाता है. उसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है. वंस अगेन ब्रेक, सस्टेन. इसके बाद आप देखिए ये पहला कैंडल है जो ब्रेक करता है. उसके बाद हार्डली यू कैन सी अ फॉलो अप सेलिंग, ऑल्दो दिस इज अ कैंडल व्हिच इज ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर लो. बट इफ यू सी आफ्टर, कहीं ना कहीं ये भी एक, आप बोल सकते हैं, मदर कैंडल बनने के बाद इट इज जस्ट गोइंग अप. ओके, बट ऑल्दो इफ एट ऑल अगर सेलिंग आता भी, तो इसके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक मिड कैप की तरह फ्रेश आईपीओ है. तो इसका आप लो पकड़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस लो और दिस लो, मैं ये लो इसलिए पकड़ूंगा क्योंकि इसने टच किया हुआ है, सो आई माइट कंसिडर दिस पर्टिकुलर लो. ओके, तो कहीं ना कहीं फाइनली इधर आके रिट्रेस कर सकता था. देन मूविंग ऑन, इधर देखिए, दिस इज ऑलमोस्ट नियर टू L4. ये कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद आप देखिए सस्टेन, राइट. फाइनली दिस कम्स, सी this candle breaks L4, a very visible virgin CPR, a very good visible virgin CPR available. ये देखो, इधर भी आप देखिए ट्राई हुआ है तोड़ने का, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन गोज अप. चेक दिस थिंग, सेम थिंग हैपनिंग हियर एज वेल, राइट. इधर भी देखिए प्रॉपर ब्रेक किया है, फिर फॉलो अप सेलिंग आया है. इसका वर्जिन सीपीआर आप देखिए कहां पे पड़ा है, राइट, which is unable to get filled. Although this is also a virgin CPR, अगर आप देख पा रहे हैं तो this is also a virgin CPR. Have a look. Goes up, comes down, 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 comes down. Monthly L4 break, comes down, finally fills this virgin CPR, and now you see the move. ऊपर जाता है, comes back to retest, ऊपर जाता है, break, comes to retest, and then you see the move, see the gap up, and then goes up. Now coming back to this shifting this particular range, ये देखिए, ये एक वर्जिन सीपीआर है, मार्केट ब्रेक्स L4. ये देखिए कैंडल ने L4 ब्रेक किया है, वापस रीटेस्ट के लिए गया है, उसके बाद आप देखिए कहां पे ये सपोर्ट ले रहा है, एंड देन अगेन मूविंग अप. देन सी जस्ट किस एंड गो, 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 किस एंड गो. इधर तो किस भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट इट वाज वेरी नियर टू L4. आप देख सकते हैं करंट सिनेरियो में भी एवरी 4 इंडेक्स, 1 द ब्रॉडर एंड 3 द मेजर, सबके सब यही चीज कर रहे हैं. एंड लास्ट इंडेक्स अगर आपको देखना हो, सीनेक्स 500, उसका भी मैंने मार्क नहीं किया, बट आप इसको सेम प्रोसेस से फॉलो करके अपना होमवर्क करिए इसमें, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फाइंड. ओके, डू यू फाइंड अ पर्टिकुलर सिमिलर काइंड ऑफ हैपनिंग्स इन द निफ्टी 500 चार्ट और नॉट? ओके, ये देखिए करंट सिनेरियो ये. इधर भी देखिए लास्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, पहला कैंडल ब्रेक करता है, फिर इमीडिएट ऊपर आता है, फिर से इधर एक लो ब्रेक होता है,
आप देखिए सेलिंग कहाँ पे आके बंद होगी. Check this thing out. How beautiful is this particular thing? Correct. So, and this is not like Alu Chalu Index. This is not sector chart. This is a proper Nifty 500 chart. 500 companies, including Nifty 50, Next 50, Nifty 100, and Nifty 200. Everything is included here. Everything. FNO के सारे stocks भी इसी में हैं. So this is the overall picture. अगर आप ये सारे अभी तक जो मैंने दिखाया, अगर आप उसको डिनाई कर दो ना, इसको कैसे डिनाई करोगे? बिकॉज ये तो सबको ही लेके चल रहा है. सबका सब इसी में है निफ्टी 500. एंड यू सी हाउ ब्यूटीफुल द चार्ट इज. So I hope this video makes sense to you, and this video will help everyone going forward to understand whether the market is in a bull run or a bear run, and it will help you switch on your SIPs when you have to switch up your SIPs or switch down your SIPs. Everything is monitored here itself. On that note, I hope this video helps you, and you can now solve your own queries by yourself and be independent in your search as well. On that note, have a good day, have a good night, and have a good weekend as well. Bye bye, Pipsters.